We're talking to Preksha here, who is ranked 30 in 2022 examination. Results 23 में आए हैं, and she has got that 30th rank. And we have discussed 4-5 broad themes: how she started the journey, what her motivations were, how did she keep herself in the process. इनको 4 attempt लगा है qualify करने में, and she says the पूरा process has been a great learning experience, is a part of developed personality. इसके बाद we discussed about how to make notes, what type of current affairs होना चाहिए, what type of skills होना चाहिए in terms of analysis. So in conversation with Preksha. Hello all of you, I'm Shabbir from Educemi, and I'm very happy and very proud to be talking to Preksha with us. Preksha is 2022 topper, ranked 30, and she is getting into IAS formally this year. Preksha has been our old student. Preksha last year we qualify कर चुकी थी. She was in Indian Defence Account Services, and this year she has managed to improve her rank. And we'll talk to her and understand कि इन्होंने क्या किया था, what was her approach, what mistakes she had done जिनकी initial preparations में, ताकि आप सब इसे सीख पाएं and hopefully you also qualify and get in the ranks. So thank you Preksha for joining us. My congratulations मेरे तरफ से from our team Educemi. Very proud to have you here. So सबसे पहला obvious question is, what is the feeling first? Tell me, what do you feel? I've not even been able to actually feel a lot because I'm just busy with the interviews and everything. But yes, it's a feeling of satisfaction that okay, I have achieved what I wanted to, and now I can get out of this cycle. So there's a relief कि Yes. अब खत्म हुआ cycle Yes, and do something definitely. else. तो जब आपको last year defense account service मिला Yes. था, so was that disappointing for you, or No. did you think that कि No, it wasn't disappointing. I only tried again because I thought that I started out with this theme in my mind that I want to have become an IAS officer. तो बस इसलिए एक था कि एक और अटेम्प्ट देकर देखते हैं. लेकिन ये सर्विस जैसे मतलब कई सारे सीनियर्स ने भी बोला था और मुझे भी लगा फील कि सर्विस सेटिस्फाइंग है ये. तो इफ़ आई वुडंट हैव गॉटन टू द IAS दिस ईयर तो मैं शायद IDAS में ही रुक जाती. you were happy with? Yes, Okay. definitely. Yes, it's a good challenging job. Yes. आज के डेट में डिफेंस इंडियनाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, हाँ. लॉट ऑफ एक्टिविटी देयर. अच्छा ये बताइए प्रेक्षा कि आपका एम्बिशन टू गेट इनटू सर्विसेज, जनरली बच्चे बात करते हैं चाइल्डहुड ड्रीम्स की बात करते हैं, बट फॉर्मल आपका कब हुआ क्लैरिटी, यस मुझे ये काम करना ही है? वाज इट इन द कॉलेज और आफ्टर द कॉलेज? In the college when I was exploring all the fields, like कुछ लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ लोग कैट की, कुछ लोग कहते प्लेसमेंट अच्छी जगह मिलना है. आई इन माई माइंड आई हैड दिस ऑर्डर, मुझे 9 to 5 की जॉब मैं नहीं कर पाऊँगी कभी भी क्यूबिकल वाली. तो मुझे कुछ आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर अपने करना है एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग की विच इज़ बियॉन्ड मी. तो मैं NCC कैडेट थी कॉलेज में एंड आई वाज आल्सो इनटू द रोटरी क्लब. तो वहाँ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री अपार्ट फ्रॉम मी. तो देन आई फॉर्मली फिर मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था इन माई 8th सेमेस्टर. तब लगा था कि ओके दिस इज समथिंग वेयर आई कैन बी बेटर देन एवरीवन एल्स. तो इट वाज इन कॉलेज, अ Yes. कॉन्शियस चॉइस, यस एंड प्रोबेबली 8th सेमेस्टर यस ऑनवर्ड्स. यस. So आपको लगता है कि अगर आप शुरू कर देती प्रिपरेशन मे बी 3rd year onwards, your journey would have been a bit better and more smoother? It from one angle we can say, but then I would have missed my college life. Okay. I wanted to enjoy both of the things. और ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन 8th सेमेस्टर में इसीलिए लिया क्योंकि फिर लगा कि सब लोग अब प्लेसमेंट वगैरह लेके जा रहे हैं तो अब कुछ सोचना पड़ेगा. बट आई वोंट कॉम्प्रोमाइज माई कॉलेज लाइफ फॉर इट. It's a very important learning for all of you. The preparation कर रहे हैं आप colleges में, we hear a lot of students get aspirational second, Yes, first year yes. में, that's perfectly fine. Yes, that's But it's very important कि आप कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज ना करें. ये नहीं करें कि आपने यूपीएससी प्रिपरेशन डाल दिया एंड योर ग्रेड्स इन कॉलेज हैव फॉलन डाउन ड्रामेटिकली. बिकॉज ये फैक्ट है ना परीक्षा कि Yes. एग्जामिनेशन एंड ऑफ द डे इज नॉट एन इजी एग्जामिनेशन. Yes, yes. वैकेंसीज बहुत कम होती हैं. There are so So many it's uncertainties here that if you have a strong background in your graduation subject, you won't have to be terrified afterwards. If you don't get say for God से मतलब कुछ भी हो सकता है आपके आगे जाके कि 3rd attempt 4th attempt 5th नहीं कर पा रहा तो कुछ बैकग्राउंड के लिए
आपका ग्रेजुएशन ही है जो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। ग्रेजुएशन इज लाइक द बेस, yes, जो बच्चे बोलते हैं ना प्लान बी चाहिए, प्लान बी आई बिलीव इज ग्रेजुएशन का गुड परफॉर्मेंस। yes, और प्लान बी से भी ज़्यादा यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट इफ यू डू वन स्टेप एट अ टाइम। यस यस, अगर आप कॉलेज को छोड़ करके इसमें आते हैं तो आपको वो रहता है कि एक कॉन्शियसनेस में आपके एक वो कि यू कैन नॉट अचीव वन थिंग कम्प्लीटली, यू आर जस्ट स्किपिंग द थिंग वो इनकम्प्लीटनेस रह जाती Yes. है। तो दैट्स वन अ गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने जो 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया था एक साल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए टू गेट इनटू मतलब एनआईटी और आईआईटी। तो वो भी एक था मुझे कि मैं पहले 12th कंप्लीट कर लूँ, मुझे ये नहीं करना कि मुझे 12th की मुझे हिंदी इंग्लिश या कंप्यूटर्स में भी इक्वल मार्क्स नहीं एज इक्वल इन टू मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। वाओ, तो आई डोंट नो, मतलब वो अपनी फिलोसफी है, आई डोंट वांट टू इम्पोज अपॉन इट, बट ये होता है कि इफ़ यू कंप्लीट वन थिंग एट अ टाइम इन द लॉन्ग रन ऑफ थिंग्स यू गेट अ सेटिस्फैक्शन। not combining 3-4 things Yes, same time, although वो भी एक talent है multitasking, I won't say that it's bad. It's a good thing in but today's not something world. for you at least. Yes, not for me. So she finished her class 12 properly, did well, took 1 year's break, studied for entrance, Yes. and then you got into NIT, NIT NIT Bhopal. The alumni of NIT Bhopal, and then the journey for this started Yes, in yes. the 8th semester. Yes. Thank you, Preksha. That was very enlightening there. अच्छा, आप ये बताइए कि फंडामेंटल स्किल्स क्या होती हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अ स्टूडेंट इवेलुएट्स हिमसेल्फ कि एग्जामिनेशन में आना चाहिए नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि बच्चे एस्पिरेशन लेवल में घुस जाते हैं कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विदाउट इवेलुएटिंग कि वो स्किल्स हैं या नहीं है। लॉट पीपल जंप इनटू इट बिकॉज एडवेंचर है, एक नया है। ओके, दो तीन वो क्या स्किल्स हैं कि वो अगर हैं तो इट्स नाइस, अदरवाइज वर्क ऑन दैट प्रॉपरली। I would say that I mean Simon Sinek has also said that start with the why. Why? And if you know the why, then you don't have to go after the how part. How part तो मिल जाता है, अभी कैसे प्रिपरेशन करनी बहुत लोग हैं बताने वाले। अगर आपके दिमाग में एक वाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना कि आप क्यों शुरुआत कर रहे हो चीज़ की, तो आपको जब भी आपको फिर, क्योंकि इस एग्ज़ाम का प्रोसेस इतना लंबा है, आपको कई बार होता है कि भाई मूड ख़राब है, डिप्रेशन हो गया, नहीं एग्ज़ाम के लिए, आप बार बार फिर आप वाई पर आ जाते हो कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, तो आपको फिर वो नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती है। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई आपको देखने नहीं बैठ रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप दिल्ली में हो या अपने घर पर अलग रूम में हो, आपके पेरेंट्स या कोई टीचर आके आपको वो नहीं करेंगे पोक कि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। इंटेग्रिटी खुद के लिए होनी चाहिए कि भाई मैं अपना काम कंप्लीट कर रहा हूँ, इट्स The honesty of okay, the Yes. truth that I am working on Yes, working. so Very start nice. with the why, integrity, and तीसरा perseverance. In at least in my case, because it took me for me 5 years. लोग कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क कर लेते हैं या हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। मेरे केस में परसिवरेंस, इंटेग्रिटी एंड आई स्टार्टेड विद द वाई। मेरा वाई बहुत क्लियर था कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे कुछ औरों के लिए करना है। Very nice. So service driven रहा है आपका. Yes. So it's important to note this. Preksha is not a regular student. She has been a very good student. Class 12 में अच्छा किया है. NIT भोपाल से qualify किया है her graduation. And then she took the time that she has taken. And I know Preksha for quite some time to tell you that इनकी अच्छी writing skills भी हैं, इनकी अच्छी comprehension skills भी हैं. इसके बावजूद इनको दिक्कत हुई है. So I think what kept her on is her perseverance, her honesty. So that's a very fundamental thing. So I was again stressing on one more aspect कि मैं competencies क्या चाहिए? What skills should you have? Okay, जैसे कि how important is reading skills? How important is writing skills? Even before you start off. I would say that before you start off, you should have this kind of कि दिमाग को खुला रखना आना चाहिए। When you read many of the facts, तो आपको वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग भी लगते हैं। आप अपने दिमाग को पहले करके बैठें कि आपने जो भी अभी तक का पढ़ा हुआ है वो सब कुछ उसको निकाल करके just unlearn the things and develop analytical skills that how to relate the things with one another. You read a thing at one place और आप उसको लिंक करिए एक और कॉन्सेप्ट के साथ में। एनालिटिकल के अलावा आप जब आपको प्रेजेंटेशन भी डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब बीट इन द स्पोकन थिंग्स और इन ऑन द रिटन थिंग्स। और वो प्रेजेंटेशन भी का एक कंपोनेंट है कि व्हेन यू रीड टू मेनी थिंग्स और व्हेन यू मीट विद टू मेनी पीपल, जो आइडियाज़ हैं आप उनको कंसोलिडेट करके एक जगह पर रखिए, एंड ओनली देन यू कैन एनालाइज देम एंड देन प्रेजेंट देम कॉम्प्रिहेंसिवली। So if I am rephrasing what she is saying, it should be open mind,
बिकॉज आप बहुत कुछ सीखेंगे विच कैन कन्फ्लिक्ट विथ वॉट यू ऑलरेडी नो. तो एक सेंस ऑफ चैलेंज रहता है कि क्या सही है क्या बुरा है, एंड यू कीप ऑन लर्निंग. एंड द स्किल्स की आप नॉलेज एक्वायर करें, बहुत सारा व्यूज़ लें, चीज़ें पढ़ें, पर कहीं ना कहीं डेवलप करो स्किल्स तो प्रायोरिटाइज व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ टू लिंक बिटवीन थिंग्स. तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा, Yes, अच्छा खासा GS इज ह्यूमैनिटीज, yes, geography is gray area, yes, but yes, again sir. humanities. Yes, sir. So did it challenge your preparation? Because you came with a mindset of science, engineering. So how much of humanities troubled you in the process? Yes, actually, the thing with the science is that you develop a very black and white kind of thinking, and you perceive the things in binary कि या तो ये है या ये नहीं है. और वो आर्ट्स वाइड में ऐसा होता नहीं, ह्यूमैनिटीज़ में, और आपको एक जो बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे आपको डेवलप करने पड़ जाते हैं दिमाग. तो इन दैट वे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मज़ा भी आता है क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से बहुत साइंटिफिक माइंडसेट के साथ में पढ़ाई करी है. तो बहुत एक बिल्कुल यूनिक डायरेक्शनल माइंडसेट रहता है, तो वो इंटरेस्टिंग लगता है जब आर्ट्स पढ़ते हैं. तो So I in think my the case, ambiguity of yes, things and in my case मतलब अच्छा लगा था कि ओ माय गॉड, ये तो, और सब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए था कि भाई मन नहीं करा तो हिस्ट्री पढ़ लिया, वरना सोशियोलॉजी पढ़ ली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ ली, साइकोलॉजी पढ़ लिया. तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसलिए पढ़ करके, कि ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा भी एक लाइफ होती है, हम लोग को नहीं so पता है. if I ask this, कि एक तो motivation point was the why part that kept you, Yes, and did this also motivate you? Yes. The idea of studying so many Yes, things, so yes, diverse, yes. new ideas challenging. हाँ, इसको दोनों वेज में ले सकते हैं. मतलब इट फॉर सम इट कैन बी ओवरवेलमिंग, पर कि बाप रे इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है. मेरे केस में तो इट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज आई डिडंट हैव टू, मतलब वो बर्डन नहीं था मुझे पढ़ना. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि Very आज मैं nice. ये पढ़ूंगी, आज मैं ये पढ़ूंगी. ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. जब आप इस लेवल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस इस डेप्थ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए अबाउट नोइंग थिंग्स, एन एक्साइटमेंट दैट यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू एरिया जो आपने सोचा नहीं था कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है. सो मोटिवेशन विल नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम what you will become, it also comes from the path that you take while you're preparing. Okay, ये जो curiosity है, the childlike excitement about knowing things, very nice, Preksha, excellent. एक्साइटमेंट तो मैं बोलूँगी कि जो भी टॉप मोस्ट जितने भी, मतलब भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या किसी को भी ले लीजिए, वो सभी ने कहा है कि व्हेन दे वर क्यूरियस, मतलब आप आइंस्टीन को देखिए, जब वो क्यूरियस थे तभी उन्होंने इतनी चीज़ें डिस्कवर कर पाया, बिकॉज दे वर रेडी टू लिसन टू द अदर पीपल, and they were ready to challenge their own concepts. So only then they were able to grow to such heights. So ये जो आइडिया हम बताते हैं कि the preparation is not simply course completion, the preparation is not simply some books to be read and articles to be read, it's deeper in terms of personality development. You develop into a completely new person, and I always think that motivation जो होता है ना, एक internal motivation सब कहते हैं होना चाहिए, external के लिए से नहीं होगा. And internal motivation becomes when you become your own hero. Wow. You don't have to search for the heroes everywhere. आप अपने कल के दिन से आज को कंपेयर कर लीजिए. Have you progressed a little bit? मैंने अभी उस पर टेक्स्ट में भी बताया था. There's a Japanese technique called Kaizen. उसमें वो बहुत इंक्रीमेंटल उसमें स्टेप्स को इंक्रीज करते हैं, एंड दैट इज द वे टू हाउ यू अचीव ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ. आप रोज उठ करके कुछ एडिशनल करिए, या कुछ भी ऐसा अपलिफ्टिंग सा देखिए, बट दैट्स हाउ यू ग्रो. Every day is a new learning. Every day is a completely transformational thing. मतलब I can say that from this stage of this caterpillar to pupa to this butterfly, आप इस एग्जाम के थ्रू बन सकते हैं, and in the very like small amount of time possible. वरना आपको पूरी लाइफ लग जाती है सब सीखने में. So it's a shortcut Yes, yes, in it's a some shortcut. in some achievements Yes, that you it's would a have. shortcut. So please, all aspirants and all viewers, it's a very important thing that she has said. कि बच्चे ढूंढते हैं रीजन, सर कैसे मोटिवेट रहे, हम दुखी हैं, हम क्या करें. प्रेक्षा says the whole excitement of learning new things and discovering new wisdom, the whole excitement of कि नए interpretations हैं about things we took for granted, वो अपने आप में एक motivation है. This is very clean, honest learning, and then of course the exam, okay, pressure will take care of the exam needs. Did you feel pressurized when preparing? How कितना pressure में आप रहे हैं? Yes, you were. प्रेशर अगर नहीं होगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे. वो मतलब एक वो
वो रहता है कि देर इज मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर तो चाहिए ही आपको वर्क करना, और उसको स्ट्रेस में नहीं कन्वर्ट करना, मतलब प्रेशर अपॉन एरिया स्ट्रेस, तो प्रेशर तक ही रखिए उसको, स्ट्रेस मतलब मत बढ़ाइए, अपना एरिया बढ़ाइए इन द सेंस कि रेजिलियंस इंक्रीज कर लीजिए अपना। तो अगर आपको जैसे मेरे पहले दोनों मेंस नहीं निकले थे, तो उसके बाद में लगा था कि डू आई मतलब एक्चुअली डिजर्व गेटिंग इनटू द सर्विसेज, लगा कि नहीं मतलब आई कैन, अभी दो दो ही अटेम्प्ट तो हुए हैं, करते हैं अभी और ट्राई करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता है, मतलब सर हमेशा कहते हैं कि आप अपने जो डर्टी वर्क जो आपने नोट्स बना के रखे हैं उसको अपने सामने रखो, तो वो एक मोटिवेशन देता है कि मैं इतना करके आ चुकी हूँ, तो अभी और थोड़ा सा कर लेते हैं। Your own work is your motivation. Your reasons to enter the service is a motivation. The curiosity and the whole process of learning new things, that's a motivation. So she's been through all of this and she says कि pressure, anxiety part of the process है, इससे इतनी ज़्यादा इससे It's a don't get part of the demotivated by all process of and that. it's a part of the life also, मतलब if you see the UPSC exam, it's a microcosm of your entire life. आप अपनी लाइफ को 50 साल को देखिए, यहाँ 5 साल में उतना आप झेल लेते हैं, तो ठीक है प्रेशर रहता है, बस हाँ थोड़ा रेजिलियंस बढ़ाना पड़ेगा, और क्या है, आप मेडिटेशन कर लो, आप कुछ ऐसी टेक्निक्स, थॉटफुलनेस आप ले आओ, अवेयरनेस ले आओ अपने अंदर, लेकिन आप भाग नहीं सकते चीज़ों से, मतलब आप इस एग्ज़ाम से भाग लोगे, लाइफ से कैसे भागोगे, कुछ और आ जाएगा आपके सामने, I रहना तो asked this पड़ेगा ही। question because आजकल lately हम because of media में भी हाँ। partly ज़्यादा anxiety और stress Yes, issues yes, आते हैं बच्चों mental के, health का बहुत and issue है। some of them do very drastic, Yes, unfortunately yes, with yes, drastic steps, yes. not required. It's a pleasurable journey, a new discovery. Take it in that spirit Yes. is what I और want. और लोगों से मिलना ज़रूरी है, मतलब हम लोग ऐसे बंद तो जाते हैं कमरे में अपने रूम के अंदर, आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम Socialization is also यस, important. सोशलाइजेशन बट विद अ गुड पीपल, Hmm. जो आपको अपलिफ्ट करे, मतलब ज़रूरी नहीं आप एनर्जी वैम्पायर से प्लीज़ दूर रहें, सब लोग ऐसे लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, हाँ जो आपको सक आउट कर लें, लेकिन ऐसे लोग चाहिए, और वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट इतना आप अपने दिमाग में ऐसे पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, you how to differentiate between the people who actually care for you and who can help you Uplift grow, you. Yeah. and ऐसे लोग जो कि आपको बस नीचे करने वाले बैठ रहे हैं, और रखिए अपने सामने, मतलब हैव 10 people around you, मतलब आप उनसे फ़ोन पे बात करते So रहिए, बट you don't need to go into an यस isolation. नहीं आप Okay. मतलब पहले 1 साल रही, 1.5 साल, बट वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, उससे नहीं होने वाला है। But the wisdom is find the right people Yes, to find the work right with. people, find the right people. In fact, I'm encouraging this कि जो बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं, we tell them कि find 1 or 2 person या लाइब्रेरी में मिल जाएं आपको, people who are in the process, who understand your stress and who are committed to studying as intensely. So did you find some people of that kind? Yes, yes, and I was conscious in that respect कि मुझे ऐसे लोगों से मतलब दूर रहना है, जो लोग मुझे डिग्रेड कर सकते हैं। Energy vampires. यस, एनर्जी वैम्पायर से बिल्कुल दूर रहना है। वो प्रेत आत्मा है, वो भटकते वाले आत्मा है, वो मिल जाते हैं। ओके, बहुत लोग तो और वो फैमिली में ही होते हैं। हाँ, फैमिली ओके, में भी वो होते हैं, सही बात है। कजन्स, अंकल, मौसी, हाँ, बुआ, कोई भी हो पड़ोसी होते सकता हैं है, आपके। पड़ोसी होते हैं, और वही अल्टीमेटली विल Exactly. कम आल्सो टेल यू दैट दे न्यू यू विल क्वालिफाई। एग्जैक्टली, ओके, आके आपके ना मेरे से आगे लोग कहते हैं, हमें पता था पहले 8 क्लास होता था, 8 क्लास में मैंने खुद नहीं सोचा था कि मुझे ये करना है, आपको कैसे पता था? दे फाउंड यू नाउ। आपको कैसे पता था 8 क्लास से कर लूंगी? चलो, दिस ओवरऑल डिस्कसिंग कि कैसे प्रोसेस हुआ Yes. इनके साथ प्रिपरेशन का जो अनफोल्ड हुआ। नाउ क्विकली द ब्रास्ट टास्क क्वेश्चंस, हाउ इंपॉर्टेंट इज नोट्स मेकिंग and how important is synopsis? Because this is something I always talk about, Yes. but I want to hear from you as an aspirant who's qualified. Yes. What did you do and how important is that? वो नोट्स एंड सिनॉप्सिस बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। और अगर आपको अपना पूरे जो भी सिलेबस का बर्ड्स आई व्यू चाहिए, तो उसके लिए आप अपने नोट्स तैयार रखिए अपने सामने, जितने भी आपके पास में ऑप्शनल के क्वेश्चंस आएंगे या जीएस के क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, वो सारे आपके नोट्स में से ही निकल के आ रहे होते हैं। कुछ कुछ वैल्यू एडिशन उसमें करना पड़ सकता है, बट नोट्स आर द क्रक्स ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन। नोट्स आपको सही बनाने But आने चाहिए, बस नोट्स वो क्यों बनाए? नोट्स तो मार्केट में मिल जाते हैं। नहीं, You can go and buy them. सारा हर इंस्टीट्यूट का, हर टीचर का नोट पड़ा हुआ है। Why should you anybody? I mean, smart work. What does your wisdom tell you on this? According to me, when you take some other person's notes, you are not using your mind, और वो बहुत पैसिवली आप वर्क कर रहे हैं, आपने कुछ भी उसमें एक्टिव यूज़ ही नहीं करा अपने माइंड का, और
आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे आपको बहुत एक्टिव थिंकिंग चाहिए वहाँ पर, और वहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं कि आपने किसी के नोट्स आप उसको रट लीजिए बट वो आप उसको वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर नहीं पाएंगे एग्ज़ाम की फॉर्म में। आप अपनी जब तक नोट्स आपके खुद के रहेंगे एक तो आपको वो ग्राइंड आपको करना आ जाता है कि आपको हाउ टू सिट फॉर 10 to 12 hours एवरी डे एंड देन प्रिपेयर दी नोट्स एंड, और एक आपका राइटिंग डेवलप हो जाती है, वरना हम लोग लिखना छोड़ देते हैं, बस पढ़ते रहते हैं बैठ कर और फिर सो भी जाते हैं। तो वो लिखना भी नहीं आता जरूरी है है। और ना ही ग्राइंड करना आता है, उसके बाद में हमारी जो एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाती हैं। अगर हम किसी और के नोट्स ले लेते हैं हमें लिंकेजेस नहीं आती, और इस समय पर यूपीएससी इज ऑल इनटू द एनालिटिकल पार्ट। यस, बहुत ज़्यादा लिंकेजेस हैं, जीएस 3 के पेपर में जीएस 2 का जीएस 4 का कुछ भी पूछ रहे हैं इस समय पर। वो जीएस 4 में इन्वायरमेंट पूछ रहे हैं, इन्वायरमेंट के एथिक्स पूछ लेंगे, जीएस 1 में वो लोग इकोनॉमी पूछ लेंगे, दे आर आस्किंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जो तो वो आप नहीं बाउंड्रीज कर ब्लर हो सकते। चुकी हैं, यस, इट हैज टू बी योर यस, थिंकिंग, योर योर थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्टली, योर नोट्स। एग्जैक्टली। और स्मार्ट वर्क इससे नहीं होता है कि आप किसी और की चीज़ पढ़नी, स्मार्ट वर्क ये है कि अगर आपके नोट्स हैं पहले आप उनको कंसोलिडेट करके रखिए एंड देन यू गो थ्रू 3 or 4 साइकिल्स ऑफ इट। लाइक मैंने करा था कि अगर मेरे 50 पेजेस का एक चैप्टर है तो उसके पहले स्टेप में उसके नोट्स बने तो 10 पेजेस में आए, अगले स्टेप में वो 5 में रह गए, फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन में आके वो सिंगल या हाफ पेज पर आ गए, और फिर एग्जाम से पहले जस्ट बस उसको पढ़ना पड़ा मुझे। तो वो देर आर स्मार्ट वर्क हुआ। साइकिल्स इन हाउ यू यस, कंटेंट इज कंप्रेस्ड, एक बार यस, में नहीं होता। यस, तो वो स्मार्ट वर्क है, ना कि आप किसी और के नोट्स में वो Okay, that's excellent. So it is not a magic of taking some notes and doing it. आपको करना होगा ये काम। इनोलॉजी की तरफ से कि भाई अपना पालतू कुत्ता अपना होता है, पड़ोसी का पड़ोसी का होता है। ओके, जो जो आपको प्यार मिलेगा अपने फैमिली से, अपने बच्चे से, अपने पेट से, इज नॉट व्हाट यू विल गेट फ्रॉम समबडी एल्सेस पेट और फैमिली। तो आपको अपना ही ग्रूम करना पड़ेगा। इज दैट राइट देयर? हाँ, ये यू वोंट फील एनी सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट टू योर नोट्स। मतलब अगर आप किसी और के नोट्स लाएंगे तो हो सकता है आप उसको 1 महीने के बाद में हटा भी दें, हम कहीं रद्दी है ये, तो आपको नहीं नहीं, नहीं दोबारा मन तो करेगा। आपने ये कभी किया था, किसी का नोट्स इकट्ठा किया था? नहीं किया था। मैंने बिल्कुल मतलब जो भी नोट्स मेरे खुद के हैं, यू हैव डन इट। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि वो मेरा खुद का एज ए क्रिएशन है। कोई आपसे ले ले चोरी करे तो आप तो मार दोगे उसको। मतलब आई फील बैड अगर कोई लेता है उस पे कुछ उस पे पेन का मार्क आ जाता है या मोड़ देते हैं, तो आई फील बैड अबाउट इट, बट तो मार नहीं सकते, नॉन वायलेंस फिगर ऑफ स्पीच, मन में गाली तो दे ही सकते हो। ओके, सो नोट्स मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? टेक और क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी इन अ डे? इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड ऑल आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, कितना आप पढ़ाई करते थे? आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत वेग क्वेश्चन है। पहली बात तो ये सब पूछते हैं बट दिस इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। आपका रोज मन इक्वली नहीं करता है पढ़ने का, किसी दिन आपको बहुत मन करता है 12-13 घंटे पढ़ लेते, किसी दिन नहीं मन करता। वो व्हाट आई डिड दैट, एक मैंने मिनिमम अमाउंट रखा हुआ था, इतने घंटे कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना है, उसके ऊपर नीचे हो सकता है। तो मतलब अब वो भी डिपेंड करता है, एग्जाम पास आने वाला होता है तो आप 10 आवर्स से कम नहीं रख सकते हो पढ़ाई में, राइट। और एग्जाम दूर होता है तो कोई नहीं पढ़ेगा 10 घंटे, आप 2 घंटे पढ़ लो बहुत बड़ी बात है। आपका मेंस अगर 4-5 महीने दूर है, आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 या 4 घंटे, और उस समय पर 10 घंटे पढ़ने का सेंस भी नहीं है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे 4 महीने तक। तो ये जो हवा है ये कि 15 घंटा पढ़ना है, 20 घंटा पढ़ना है, इट डजंट मेक सेंस बिकॉज एक कुछ फिक्स्ड आवर्स रख लीजिए कि हाँ ये कंसिस्टेंसी रखनी है। डोंट लीव द बुक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब रोज आपका Oh. जो मिनिमम है, एक न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है, एडिटोरियल है, रोज का रोज होना चाहिए। मतलब ये दो चीज़ें तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये रोज ये एक एनिमल है विच या जस्ट कीप्स ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर एवरी डे, यस। और आप उसको इसको खाना नहीं खिलाएंगे तो ही बड़ा हो जाता है। हम्म। तो ये एक है चीज़। बाकी तो था कि भाई किसी दिन ऑप्शनल पढ़ने का ज़्यादा मन है, किसी दिन जीएस पढ़ने का ज़्यादा, जीएस में भी इतनी सारी वैरायटी है, वो हो जाता है जी। डिड यू हैव ए प्रॉपर प्लान फॉर योरसेल्फ? 2-3 मंथ्स का प्लान का चाहिए, मुझे अब तक खत्म करना है, एग्जाम ये दिन में है तो मैं ये खत्म करूंगी पहले इतने बाद। डिड यू हैव ए प्लान ऑन दिस? आई हैड प्लान्स बट आई चेंज देम अकॉर्डिंग टू माय सूटेबिलिटी। मतलब मैं ऐसा बट नहीं प्लान्स था, थे आपके? हाँ प्लान्स रखती थी मैं, लाइक डेली प्लान तो रहता ही था, डेली के अलावा एक वीकली और थोड़ा जैसे 2 मंथ्स तक का रहता था। बहुत लंबा नहीं करती थी मैं, 1 साल का प्लान बना करके वो नहीं करती। व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज कि बहुत बच्चे क्या होता है मैकेनिकली क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और क्लास जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई बिगर प्लान नहीं है, एक बिगर एक लेड आउट ब्लूप्रिंट नहीं है, ओके, एंड देन दे आर टोटली लॉस्ट।
So you need a thinking mind. That's why I'm asking you कि आपके पास प्लान, ऑफ कोर्स ये राइट है कि प्लान चेंज होती रहेंगी okay, according to your study का achievements, milestone achievements, but a plan is important, I believe. What I used to do, the prefer was that I kept a 15-day plan कि 15 day per subject के हिसाब से आप रख सकते हैं. That is more doable बजाय आप 5-6 महीने के प्लान के. जैसे 15 days अगर आपने आर्ट एंड कल्चर का रखा तो वो डुएबल रहता है. उसमें आप अपना उसको स्प्लिट कर लीजिए कि इतने यूनिट्स इस दो दिन में ये 2 दिन में ये, वो चीज़ है डुएबल. So you need a plan. हाँ, 15 days So काफी है. summarizing 3 things. One is you need an analytical mind. You need have the ability of studying many things and processing also. ये एक important skill है. You need to have a sense of purpose and why you are doing to keep yourself motivated. आपका अपना journey must be enjoyable. A lot of motivation comes from small successes like seeing your own work. Having said that, this examination में आपके frustrations होंगे, you'll have your depression, anxiety moments, but that's a part of the package. And you must make your own notes. बहुत important है. Mechanically notes खरीद के उस पे ना पढ़ें, आप अपना notes बनाएं. And एक planning का sense भी होना चाहिए. Right? The summary of what we discussed till now. Now, Preksha, one question to you is, how did you plan your current affairs? Was it, and how many hours a day did you prepare for current affairs? करंट अफेयर्स का जैसे मतलब आपने बताया था वही वाला पूरा प्रोसेस था मेरा. कुछ डिफरेंट नहीं था. ये था कि न्यूज़पेपर को हम लोग अगर जैसे बैठेंगे लेकर के उसके नोट्स बना रहे हैं, आप पूरा दिन बैठ जाइए, वो ख़त्म नहीं होने वाला. तो पहली बात तो ये गलती नहीं करनी. अखबार उठाइए, उसको बस मेनली आपको एक हेडलाइंस और पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है कंट्री में. और कोई भी इशू है तो उसी दिन सेम डे मत नोट डाउन करना. मतलब 10-15 days you just wait for the thing to get over. Develop, yes. And after that you just मतलब write down the notes. Second is make editorials के जो notes बनते हैं हम लोग बनाते हैं तो keep it in the question answer form as sir says and have like 7 to 10 editorials per week. Third is at the current affairs magazine which you do. 2 to 3 days per month is enough for it. Just पूरा मंथ का हाँ 2-3 दिन में खत्म करो. उसको खत्म करिए बस. बस समराइजिंग, एक तो है डेली बेसिस पे सारा पेपर ना पढ़ डालें. ओके, आइडेंटिफाई क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, एक कर्सरी. डिटेल स्टडी इज एडिटोरियल का. One editorial a day. Yes. Okay, and maybe sometimes 3 or 4 articles in a week maybe. That's okay. Okay, that. Third बहुत important है कि कोई इशू अगर होता है तो उसको आप पहले बनने दें, उसको पकने दें. Develop that issue. Is that right? Yes. Okay, rather than okay, आज का न्यूज आज लिख लिया. So if I suggest the students कि वो पढ़ाई लैग में करें. हाँ, exactly. Okay, will that work? Exactly. आपको हेडलाइंस पता होनी चाहिए भाई अवेयरनेस के लिए. बिकॉज आप पढ़ाई कर तो मतलब होगा डिस्कशन क्लास में तो एक आपके पास आइडिया होना चाहिए. लेकिन जो भी डिटेल्स होती है, जैसे अगर किसी भी मतलब असेंबली में मतलब किसी स्पीकर ने अभी कोई एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करा है तो अगर वो कोर्ट में चला गया केस तो 10-15 दिन के बाद वो पूरी चीज़ सॉर्ट आउट होने वाली है. तो उसके बाद आप एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ. लेट द मैटर जस्ट डाई डाउन. आफ्टर दैट then you get a good wholesome view of the development. फिर वो बस वो कोर्ट के बस वो जजमेंट्स आते रहेंगे, उनकी बस वो हियरिंग्स आती रहेंगी, उसको कोई मतलब we can't make sense of it. Okay. अच्छा, one question कि आपके sources क्या थे current affairs के प्रेक्षा? What all sources? न्यूज़पेपर में I started with the Hindu for 2 years and then I switched on towards Indian Express because वो better उसकी अब थोड़ा presentation भी better है और उसमें एक explained page आता है. तो That's nice. Yes, तो उसमें वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देते दो कॉन्सेप्ट्स को पर डे. तो वो अच्छा रहता है. बाकी आई चोज वन ऑफ द करंट अफेयर मैगजीन्स. वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लो, उसमें ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन है नहीं. एडिटोरियल्स के लिए यू यूज़ द इंटरनेट बिकॉज कई बार हम जो अखबार पढ़ रहे होते हैं उसके एडिटोरियल्स आर नॉट अप टू द मार्क. तो आप खराब एडिटोरियल के नोट्स बनाने से अच्छा है कि गो फॉर समथिंग बेटर लाइक डाउन टू अर्थ है या मिंट एक आता है हिंदुस्तान का, वो भी अच्छा है, उसमें होते हैं. तो डाइवर्सिटी रखिए आप अपने एडिटोरियल्स में. मतलब समटाइम्स क्या होता है कि पॉलिटिकल ही आते रहते हैं एडिटोरियल्स बस. तो हैव समथिंग ऑन एनवायरनमेंट, समथिंग ऑन साइंस एंड टेक, समथिंग ऑन योर इकोनॉमी, समथिंग ऑन द सोशल इशूज़. तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी.
तो सोर्स डाइवर्सिफाइड था आपका? यस हिंदू आपने शुरू किया था, हाँ इंडियन but एक्सप्रेस this आपने is उठाया, Indian Express, yes. ओके, आप इंटरनेट भी देखती थी, हाँ एंड एनी इंस्टीट्यूट्स का जो कंपाइलेशन है दैट वुड बी फाइन, एंड आई थिंक यू रिकमेंडेड कि कंपाइलेशन को 2-3 दिन में खत्म करना चाहिए, yes exactly Okay. 2-3 days are sufficient. एंड इज देयर अ वे टू आइडेंटिफाई पढ़ना क्या है कंपाइलेशन, बिकॉज दे ओनली गेटिंग थिकर, ओके, Yes, सो yes. हाउ डिड यू मैनेज दैट, हाउ डिड यू मैनेज टू नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? I mean, this comes with your experience. When you start to doing it 2-3 months तक तो लगता है कि you are quite lost. थोड़ा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यू जस्ट कैरी योर यूपीएससी सिलेबस विद यू, उसको Yes. साथ में रख के आप मैच करते रहिए. इफ दैट टॉपिक मेक सेंस, उसमें कहीं से भी कहीं तक लिंकेज है तो आप लिख लो, अदरवाइज स्किप इट. जैसे स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, लोग उसको एकदम छोड़ देते हैं. इट वर्क्स फॉर द एसे पार्ट. तो ओके, ये गलत चीज़ कुछ है. एग्जाम्पल्स उठाना एथिक्स है, में काम करता है वो. विराट कोहली गौतम गंभीर का भी इंसिडेंट, दैट वर्क्स इन एथिक्स. तो ये चीज़ हम लोग कर देते हैं. अब कई सारी न्यूज़ है जो हमें लगता है काम की, वो काम की होती नहीं है. तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है. तो आई थिंक सिलेबस अगर एंड प्रीवियस क्वेश्चंस Yes. अगर जहन में है, यस then the current affairs reading can be mapped to that. यस यस तो very nice, interesting कि स्पोर्ट्स का न्यूज को एग्जाम्पल देते हुए लिख दिया केस स्टडी इन एथिक्स, एथिक्स और Okay. एसे में भी. एसेस में भी, ओके, एक्सीलेंट. सो समराइजिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे थे. करंट अफेयर इज डेफिनेटली अ वेरी बिग एरिया, एंड प्रेक्षा बिलीव्स दैट इसको अगर आप हर दिन के बेसिस नहीं करेंगे, इट ओनली बिकम अ बिग अनमैनेजेबल एनिमल. तो आपको करना पड़ेगा, बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में. सो आप करंट अफेयर्स के लिए पर डे कितना टाइम देती थी आप? couple of maximum 1 to 2 hours a day. 1 to 2 hours. It's sufficient. You will not encourage कि 4-5 घंटे बैठ के करें. way. You have your optionals and your GS also for that. और करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम देने से बेटर है आप ऑप्शनल ऐसे और एथिक्स ऐसे पेपर्स में दीजिए, बिकॉज दीज आर द की डिफरेंशिएटर्स. GS 1, 2 and 3 are no longer the differentiators in your exam. ओके, GS 1 and 2 से नहीं, ज़्यादा एथिक्स हैं, एसेस पेपर. Option, that is what is creating the major difference. ओके, तो दैट्स अ नाइस इनसाइट वी हैव कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में मैप करते हुए पढ़ो. नो द सिलेबस वेल, नो द क्वेश्चन पेपर वेरी वेल, क्या ट्रेंड रहा, एंड अकॉर्डिंगली ट्राई लिंकिंग द करंट अफेयर्स विद दिस. अजीब भी लगेगा सुनने में, बट बिफोर माय मेंस एग्जाम आई यूज्ड टू स्टॉप रीडिंग पेपर्स 2 months बिफोर. 2 months बिफोर, ओके. क्योंकि आई थॉट दैट जो भी टॉपिक्स हैं जनरल, अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, जेनेरिक टॉपिक्स हैं. एग्जाम्पल के लिए आप हाँ पता होना चाहिए कौन सी असेंबली में हुआ है लेटेस्ट, बट कॉन्सेप्ट तो वही आने वाला, स्टैटिक का ही कॉन्सेप्ट है वो. प्रेक्षा, एक क्वेश्चन बनता है और बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है एंड दे कैन रिमेंबर मेनी थिंग्स, गॉड्स गिफ्ट टाइप का होता है शायद. तो आपको ये गॉड गिफ्ट आपको कभी था नहीं? सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस. तो आपने याद कैसे किया? हाउ डिड यू रिमेंबर? लिख लिख कर करिए आप. आपको बार बार लिखना पड़ता है कि फैक्ट को आप चलते फिरते अपने दिमाग में उसको रिवाइज करते जाइए. आई मीन इट्स लाइक सेइंग, माइकल फिलिप्स से कहा था किसी ने कि इट्स योर लक, एंड ही सेड दैट आई वाज इन द वाटर फॉर अराउंड 10 years और 6 hours every day. I think 17 years it was that figure. और उन्होंने कहा था कि people call it luck, I call it my hard work. तो ये तो गलत है. माइकल फेल्प्स रिकॉर्ड ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल के साथ रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं उन्होंने. से लोग बोल देते हैं कि आपका तो लक है, आपके मतलब people are who work hard are considered to be lucky, but उसके पीछे का ग्राइंड देखने की ज़रूरत है. याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. आप लिख कर याद करिए. किसी को ज़्यादा समय लगता है याद करने, मुझे लगता था, मतलब मेरी एनालिटिकल पार अच्छी थी, मैं कॉन्सेप्ट रिलेट कर लेती थी, बट फैक्चुअल इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे बार बार करना पड़ता था. और उसका बेस्ट वे आप उसको आंसर्स में यूज़ करते रहो. जीएस के आंसर्स में आप अपने फैक्ट्स यूज़ करो, ज्योग्राफी के आंसर्स में आप जीएस के फैक्ट्स को भी अप्लाई कर लो, तो उससे वो लिंकेजेस बनी रहती हैं. प्रेक्षा, नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम जीएस, ना तो एक और क्वेश्चन जीएस से पूछेंगे. आपने एसेज का प्रिपरेशन कैसे किया? व्हाट वाज योर मंत्रा, व्हाट वाज योर टेक्निक? Because essay is, like you said, is a deciding factor. और topics तो okay, all type of topics abstract वाले. How did you manage? essays का सब मतलब I took coaching under Shabita sir only. तो वो जो एक बेसिक था वो तो क्लैरिटी सर से ही मिली थी कि भाई इंट्रोडक्शन के लिए how to make a thesis and the summarization of it,
मेन बॉडी में किस किस तरीके से आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो तो मतलब सर ही बता पाएंगे बेटर। द ओनली थिंग अपार्ट फ्रॉम इट वाज दैट आई सर ने कहा था कि ट्राई टू ब्रिंग इन मेनी डाइवर्स कॉन्सेप्ट्स लाइक ग्लोबलाइजेशन, वुमेन इश्यूज, क्लाइमेट चेंज। तो वो डेलिबरेट अटेम्प्ट रहता था मेरा। एंड आई वाज अभी तो पिछले 3 ईयर्स से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स बहुत बढ़ गए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में तो इफ़ यू ब्रिंग इन द जीएस इट बिकम्स द एग्जामिनर ऑल्सो बिकम सरप्राइज कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो एक अच्छा रहता है कि अगर आप डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स अपने एब्स्ट्रैक्ट एसेज में भी यूज़ कर, इट जस्ट शो दैट यू आर एबल टू लिंक दैट एसे टॉपिक विद योर जीएस नॉलेज। और थोड़ा सा उसके लिए आपको रीडिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। यू शुड नो सम ऑफ द एनेक्डोट्स, सम काइंड ऑफ कोट्स और सम शॉर्ट शॉर्ट थिंग्स विच यू कैन रेडिली यूज इन योर एसे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था गौतम गंभीर विराट कोहली का, जो अभी पूरा एक जो इंसिडेंट हुआ था, इट आप उसको ऐसे में बहुत वैरायटीज में यूज कर सकते हैं। द बीट द एसेज ऑन On conflicts, हाँ, on on self conflicts control, और on और इवन कंपैशन और टीम बिल्डिंग, उसको में यूज कर सकते हैं। तो यही बस एक्स्ट्रा था, बाकी तो जो सर ने बताया था वो पूरा ऐसे। तो आपने एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ा था? Did you read some books beyond your regular books? आई मीन्स वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग बुक्स, तो आई यूज टू रीड बुक्स। बट अगर नहीं आप लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए एडिशनल अपने दिमाग को खर्च मत करो, बस नॉलेज अप्लाई करना सीख लो जीएस की, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं अगर In नहीं fact, हो पा most रहा है तो। students I have taught and I have met, उनका एक क्वालिटी होता है कि they have this mind and presence of their mind that they're able to relate lot of Yes. diverse things in Yes. whatever they do. Yes. वो जो लिंकेज वाला होता है, इट्स ए कॉमन ट्रेड दैट वी हैव अक्रॉस पीपल हु वो क्वालिफाई। सिनॉप्सिस से आती है वो लिंकेजेस। जब आप सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस से बनाते हैं तो आपके सामने दिख जाता है पूरा, बर्ड्स आई व्यू में आपको दिखता है कि ये चीज़ें हैं, और आप दो को साथ में रखते तो आपको लगता है ओ वी कैन लिंक दीज टू थिंग्स। Okay, excellent. Preksha, now moving towards optional. Preksha's optional was geography, and I was fortunate enough to have her in my class. But the question to you is, Preksha, आपने geography लिया क्यों? What was your choice? What was the basis of your choice of geography? एक्चुअली इन माई बीटेक जो सब्जेक्ट्स ऑप्शनल्स में होते हैं, तो आई डिड माई बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वो तो उसमें था भी नहीं ऑप्शनल में, तो मुझे कुछ और तो लेना ही था। तो फिर थोड़ा थॉट ये भी था कि मतलब तो मेरा जब मैंने लिस्ट को पूरा देखा तो फिजिक्स एंड ज्योग्राफी वर द टू रिमेनिंग जो मुझे मतलब जिसमें से मुझे सॉर्ट आउट करना था। फिर लगा कि जीएस से थोड़ा मतलब ज़्यादा ओवरलैप है ज्योग्राफी को कंपेयर टू फिजिक्स। देन आई फाइनलाइज। बाकी हाँ, इंक्लिनेशन थोड़ा था टूवर्ड्स ज्योग्राफी, राइट फ्रॉम मतलब आई स्टडीड इट माय क्लास 10th। इंक्लिनेशन था, बट एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये था कि थोड़ा साइंस से भी वो रहे, मतलब ओवरलैप रहे, बाकी सारी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स का साइंस से उतना ओवरलैप नहीं, सोशियोलॉजी है या पीएसआई आ रहा है। It was a very thought, rational Yes, choice, yes, not a rational random choice. choice. No, Not because random. many people take. No. That's an important learning, and that's why I asked her. So, most students who have qualified, and I can safely say they are more than 90% of them, इनके जो choice होते हैं optionals के, they are never random. They are thought through. They have analyzed the optionals, compared the strengths and weaknesses, and then they have gotten the optional. Yes. Okay, and there will be parts, I believe, which are challenging, Yes, but yes, it's a very definitely. thought process. Definitely. So आपका choice था on the basis of overlap with the GS, Yes, overlap with the your GS science and personal background. inclination, yes. Okay. So आपने optional का preparation का strategy कुछ और रखा था, or was it like the GS preparation? No, it was I mean synopsis building, writing और वो तो common ही था। बाकी थोड़ा हर एक ऑप्शनल का एक जो जैसे आप कहते हैं कि लैंग्वेज होती है हर एक ऑप्शन की, Right, right. तो वो एक लैंग्वेज पर फोकस करना था कि ज्योग्राफी की लैंग्वेज एक तो मैप्स हैं, रीजनल एलिमेंट होना चाहिए, ज्योग्राफर्स के नेम्स होने चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड आई यूज्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केस स्टडीज। Case studies, knowledge about the geography, language, relating topics with geography, मैप्स, रीजनल एनालिसिस, वो सब चीज़ें थी। without risking too obvious marketing. A question honestly for you, how did Educami help you? So I And you can be very honest Yes, here. Okay, yes. I am on the camera. Okay, yes, and I have not told her anything what she might say. Okay, so please.
आई एक्चुअली मैंने आपसे मतलब पूरा फाउंडेशन कोर्स भी आपके अंडर मैंने पढ़ा है एंड आई आल्सो टुक enrichment classes twice or thrice I think, and I have been taking test series continuously since my last 3 or 4 attempts. तो मैं बोलूँगी कि मतलब एडुकेमी एक्चुअली मतलब शब्बीर सर एक्चुअली ही क्रिएटेड द एंटायर बेस फॉर मी, और उन्होंने पूरा देखा है कि हाउ आई प्रोग्रेस बिट बाय बिट. आई वुड से दैट मतलब मुझे ज्योग्राफी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ शबीर सर, आई वुड से. तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ज्योग्राफी के बारे में. Fine, she said more than I would have deserved. But what I wanted to know is, in the process of preparation, can you talk about it, the way we follow, and what do you think helped in the process that we set as pedagogy? Okay. What I felt was good that you firstly spoke out very clearly that what is needed in the subject to increase the marks, and you are not teaching everything under the sun. तो आपने बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ था कि भाई इस टॉपिक के अंदर यही चीज़ें आती हैं, एंड फाउंडेशन क्लासेस और एनरिचमेंट में जो डिफरेंस था वो ये था कि एनरिचमेंट में ये भी एडिशनल था कि भाई जो प्रॉपर क्वेश्चंस हैं उनके वर्डिंग्स क्या क्या यूज़ करनी है, एंड हाउ टू गेन दैट एक्स्ट्रा हाफ मार्क पर क्वेश्चन. दैट इज़ वेरी क्रूशियल. मतलब फाउंडेशन कोर्स तो ठीक है, सब मेरे हिसाब से सब खुद भी पढ़ लेंगे, मैं नहीं पढ़ पाएगी, बट मैनी पीपल कैन डू इट. बट जो एक एडिशनल होता है ना कि हाउ टू स्कोर द मार्क्स, हम यहाँ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, बेसिकली हम PhD नहीं करने आए हैं. Right. हमें मार्क्स चाहिए, तो वो मार्क्स का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से बताया था. इसके अलावा मतलब एडुकेमी में प्रॉपरली ये कम्युनिकेशन अच्छा था कि जैसे जो भी हमारे डाउट्स थे वो प्रॉपरली टीचर्स ने एड्रेस करे, एंड वी वर सेटिस्फाइड. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें लगा हो कि यार ये तो So just adding to what she said कि एडुकेमी में we follow a process जहाँ पर कि फाउंडेशन के साथ में हम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं. We do advanced content, answer writing. So that's what she's referring to. So you are part of the main support program, MSP programs. Yes, sir. You are part of the foundation Yes, geography foundation, and the enrichment yes. test series. Yes, sir. That's what she's saying helped her, and I'm sure this is a method that can help many students also. Nevertheless, this year a very remarkable thing is that top 10 में there has been a good number of girls who have qualified. Yes, yes. In fact, this is something I'm very conscious about कि ये सब services में there should be good representation from all communities, from both boys and girls, from all parts of the country. It's very heartening to see that. So, as a lady, as a person who has struggled and worked hard and qualified, you have anything to tell the students about what they can do? Anything you want to tell them about the preparation process? You being a girl, what did you manage through? I mean the challenges are always high for the girls, I would say, and बहुत clearly बोलूँ तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं कि हम लोग जब ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं तो एक जो फैमिली का प्रेशर हो जाता है, अगर ये नहीं करा तो प्लान भी तो मैरिज होती है लड़कियों के लिए, तो वो बहुत फ्रैंक है, स्पेशली इन आर सोसाइटी. तो मतलब इसलिए चीज़ें टफ है लड़ाई करना इस सबसे. मेरी फैमिली मतलब मैं बहुत आई वॉज वेरी लकी कि मुझे ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं फेस करना पड़ा. बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं. तो गर्ल्स के लिए ये है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, बट देन द रिजल्ट इज ऑल्सो, द फ्रूट इज ऑल्सो मोर स्वीटर फॉर यू. तो वो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है वो और ज़्यादा अच्छी लगती है व्हेन यू हैव मेनी मोर ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ. एक्सेलेंट. तो शी हैज़ लॉट ऑफ गुड वर्ड्स कि मेहनत करें, चैलेंजेस हैं तो उसका रिवॉर्ड्स भी अच्छा होता है. एंड माई विशेस टू यू प्रेक्षा from Edukemi, from the entire fraternity of faculties and the team here from Edukemi. आप अच्छे ऑफिसर बने. Your call has been service for the nation, working society. My wishes to you कि you do that, and I'm sure our viewers, the aspirants, benefit from what you have told them. प्रेक्षा के जो notes हैं वो भी हम आपको share करा देंगे on some sample sheets, not all of it. Then you can see how Preksha has worked, how Preksha has summarized her content, how she made her jottings. You'll have some sample sheets. Do connect with us on that. So thanks you once again, Preksha, for joining with us. Thank you all viewers for listening through us, and congratulations and all the best. My wishes to you.